In this lecture, we are going to talk about the secondary tasks of a lexical analyzer. So we already know that what is the main task of a lexical analyzer. We have a very detailed idea that the main task of LA is to read the source text and break it into the stream of tokens. So in addition to that, it even performs the following secondary tasks. So what are these tasks? The first task of LA is that filtering the comment lines and white space characters, and the second task is error handling, and we will discuss error handling in detail, because this first task is something whenever we even study the lexical analyzer, we already know that it will not consider the comments and white spaces and characters and all the related stuff. So a very short description of what is filtering the comment lines and the white space characters. So we have white space characters like tab, space, new line characters, and comment lines. These are not required during the translation of a source code. So that is why the lexical analyzer simply skips them. वो इनको कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि इसके हमारे ट्रांसलेशन में कोई ख़ास मदद नहीं मिलती इस चीज़ से, और हमारे सिंटैक्स ट्री में इसका कोई लेना देना नहीं है. So that is why when we do not need it in the parser and in the next things, that is why we simply skip all these things. So next thing is error handling. Now on the lexical analyzer phase, it simply handles some kind of errors. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, you have to keep this thing in mind that it does not handle all the errors, but yes, some errors. So there are 4 approaches to recover from the errors. So basically, if it gets some of the errors, it simply if we say that we have 4 approaches to recover from the error, we have a delete option, insert option, transpose option, and replace option. So you will understand these all options with detail. So first of all, we will talk about the delete option. What we do in the delete option? This is the simplest and most important operation, and if there is an unknown character, simply delete it. अब हमारे पास अगर ऐसा कोई करेक्टर आ गया जो हमारी लेक्सिकल एनालाइजर ने देखा है कि वो ग्रामर के मुताबिक उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, तो उसने उसको डिलीट कर दिया. ऑल्दो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है. डिलीशन ऑफ अ करेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पैनिक मोड. सो इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत से हैं. कैसे इसके डिसएडवांटेजेस होंगे? डिलीशन अप्रोच हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस लाइक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम मे गेट चेंज्ड and the whole input may get deleted in the process. आप एक unknown character delete कर देते हैं, ये the whole input may get deleted in the process. I will tell you this in certain example which is coming in the next slides. So meaning of the program may get changed. अब अगर आपको like if there is a lexical analyzer and it does not understand something and it deletes it, तो मे बी उसका वो lexical analyzer को समझ ना आ रहा हो, या उसमें शायद delete ऑपरेशन परफॉर्म ना करना हो, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लेकिन delete ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाए और उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाए. लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल हम delete ऑपरेशन की देखते हैं. द सिंपल ऑपरेशन ऑफ डिलीटिंग इज लाइक लेट्स से दैट वी हैव रिटन अ CHARR. अब ये हमने char declare किया. We have to declare the char and it is CHAR. This one R is extra. This can be corrected as CHAR char by deleting the extra R. अब यहाँ पे जो हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, दिस स्पेसिफिक डिलीट ऑपरेशन, इट डज नॉट इट हैज़ नो डिसएडवांटेजेस, बिकॉज इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है कि आपने एक आर डिलीट कर दिया और आपका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये एक अच्छी चीज़ हो गई है. सेकेंड हमारे पास ऑपरेशन होता है इंसर्ट ऑपरेशन. नाउ इंसर्ट एंड एन एक्स्ट्रा और मिसिंग कैरेक्टर टू ग्रुप इनटू मीनिंगफुल टोकन. अब इसमें हमारे पास क्या है? लेट्स से एग्जांपल से देखें. लेट्स से आपके पास CHA है, इट कैन बी करेक्टेड एज CHAR बाय इंसर्टिंग द R.
यानी आपको पता है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, समटाइम्स उसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देता है, कोई वर्ड इंसर्ट करके, कोई वर्ड एक्स्ट्रा डिलीट करके। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लेक्सिकल एनालाइजर भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है अगर इतनी माइनर मिस्टेक्स हों और वो इसको ईजिली डिटेक्ट कर ले और उसको उससे रिकवर कर ले। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेशन है ट्रांसपोज। सो बेस्ड ऑन द सर्टेन रूल्स वी कैन ट्रांसपोज टू कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल देंगे। ट्रांसपोज मतलब हम दो कैरेक्टर्स की आपस में जगह चेंज करेंगे। लाइक आप देख सकते हैं WHIEL कैन बी करेक्टेड टू वाइल बाय द ट्रांसपोज मेथड। हमने क्या किया, इसमें I और E की और L की स्पेस चेंज कर दी है। हमने सर्टेन रूल से दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर दिया है, उनकी जगह चेंज कर दी है, और अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है कि हमारी चीज़ जो है वो करेक्ट हो गई है। So there is also one approach which we say replace. In some cases it may be require replacing one character by another. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है CHRR। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर R की जगह A हो तो आपकी डिक्लेरेशन करेक्ट हो सकती है। द डिक्लेरेशन विल बी करेक्टेड by replacing R with A. So when we replace the R with A, we simply correct this CHRR into CHAR, which is correct. This is a keyword to declare the character type things and all that stuff. So these were the all methodologies or all approaches which lexical analyzer uses in recovering from the errors, and they are very basic errors. So what are certain desired goals for error recovery? So we have a certain goals. हमारा पहला गोल ये है that error recovery should be accurate. यानी अगर हम error recovery कर ही रहे हैं lexical analyzer phase पे तो it should be accurate. एक तो वो माइनर लेवल पे हो और एक्यूरेट हो कि वो ठीक हो। लोकेशन ऑफ द एरर रिपोर्टेड शुड बी प्रिसाइज। जहाँ पे एरर आ रही है उसकी लोकेशन बहुत प्रिसाइजली रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर वो करेक्ट भी हो जाए तो यूज़र को पता चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूज़र का मतलब ही कुछ और हो सकता है कि यूज़र ने CHRR एक कीवर्ड डिक्लेयर ही ना किया हो, बल्कि उसने वो एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया हो। सो इस तरह की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसमें आ सकती हैं, और आप भी इस तरह के, आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वट एवर एरर हैंडलिंग वी आर टॉकिंग ऑन दिस फेज is not the final error handling. On every phase we just have a certain kind of error handling. Syntax phase पे सबसे ज़्यादा error handling हम उसमें देख सकते हैं या हम कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस फेज पे डील नहीं होती। एरर रिकवरी शुड बी क्विक, ये तेज़ होनी चाहिए आपकी एरर रिकवरी। एंड द लास्ट वन इज एरर रिकवरी शुड नॉट लीड टू एरर कैस्केड। अब इसका मतलब क्या है कि ये नहीं होना चाहिए दैट यू रिकवर फ्रॉम वन एरर एंड गेट trapped into other errors and so on. ये नहीं है कि आपने एक एरर दूर की और उसकी वजह से आपके प्रोग्राम में 10 और एरर्स आ गए। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। इफ़ यू डू प्रोग्रामिंग आपको पता होगा that sometimes we ourselves as programmers we simply correct one error and then we get 10 more errors. पहले प्रोग्राम में 1 एरर होती है, हम उसे दूर करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास 10 और एरर्स आ जाती हैं। कोई हमने कोई उनकी बाइंडिंग ऐसे की होती है कि एक चीज़ चेंज करने से बाकी सब चीज़ों पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरह लेक्सिकल एनालाइजर में भी, क्योंकि ये कोई इतना एफिशिएंट एरर हैंडलर ये नहीं है कि ये पूरे का पूरा एक एरर हैंडलर है, तो इसी वजह से अगर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एरर से रिकवर करें और बहुत सी और एरर्स में फंस जाएं। सो यू हैव टू keep track of everything whenever we design the lexical analyzer. So example है हमारे पास एक statement की. Let's look at this example. We have if a statements, else statements. अब इसमें आप सिर्फ ये consider करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है if a मतलब कोई condition थी और उसके बाद certain statements चलनी थी, और else और उसके बाद कोई certain statement थी। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें this if a, there is no blank between if a. So this if condition is not correct. Let's say lexical analyzer have he read that statement and it thinks that there are certain errors. So here to recover from the error we need to insert a blank between if and a.
लेकिन अब ऐसे भी तो हो सकता है, हाउएवर इफ ए कैन बी रिकग्नाइज्ड एज आइडेंटिफायर एज वेल, हम इसे एज आइडेंटिफायर भी समझ सकते हैं. लाइक इफ लेक्सिकल एनालाइजर इज सिंपली रीडिंग दिस स्ट्रीम IFA, हमारे पास एक आइडेंटिफायर भी हो सकता है क्योंकि ये किसी कीवर्ड से मैच नहीं कर सकता. लेट्स से लेक्सिकल एनालाइजर ने इसे एरर कंसीडर करने के बजाय ये समझा है कि ये एक आइडेंटिफायर है. लेट्स से सो इफ वी रिकॉग्नाइज IFA as ID, as identifier, then statements cannot precede an ID, so statements will be deleted. अब अगर ये एक आइडेंटिफायर है तो उस आइडेंटिफायर के बाद स्टेटमेंट्स की कोई लॉजिक नहीं बनती. लाइक व्हाट इज द लॉजिक ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर एन आइडेंटिफायर? ना पीछे हमने उसके पीछे कोई कीवर्ड लिखा हुआ है, ना आइडेंटिफायर की कोई वैल्यू है, और उसके बाद सिंपली हमने स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिए. तो लेक्सिकल एनालाइजर will think that this is something wrong, so the lexical analyzer will delete the statements. वो सिर्फ उस आइडेंटिफायर को लेट्स से के अपने पास रख लेता. जब वो स्टेटमेंट्स को डिलीट कर देगा, नेक्स्ट एल्स कैन नॉट अकर विदाउट एन इफ. अब पीछे IFA को हमने क्योंकि आइडेंटिफायर कंसीडर किया है, इफ नहीं कंसीडर किया हुई, देन एल्स कैन नॉट अकर. एल्स कहाँ से आ गया अगर हमारे पास पीछे कोई इफ ही नहीं है? इन दैट वे वी डिलीट द एल्स, and in this way we end up deleting a substantial portion of a program. अब ये अप्रोच हमारी गलत है. Like here I want to tell you that you have to think कि lexical analyzer के जो स्टेज है उस पर हम जिस तरीके से एरर हैंडलिंग करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी करेक्ट हो, या उससे सारी की सारी एरर्स हमें पता चल जाएं, या वो बिल्कुल ठीक तरीके से सारी चीज़ें कर रहा हो. हर फेज़ पे हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिफरेंट तरीके से एरर हैंडलिंग होती है. So that is why you do not need to get confused कि हमारे पास क्या सिर्फ एरर रिकवरी सिर्फ इन्हीं चीज़ों से होती है जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई. नहीं, बहुत से और तरीक़ों से एरर हैंडलिंग हमारे पास होती है, लेकिन ये सिर्फ इस फेज़ की एरर हैंडलिंग की बात हो रही है. So we can say this. So basically we can have different error handlers to handle different errors that occur at different stages. हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एरर हैंडलर्स हैं, हम उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़ करते हैं और उससे हम एरर हैंडलिंग करते हैं. इसके अलावा एक और काम जो लेक्सिकल एनालाइजर करता है वो ये है दैट इट एसोसिएटिंग द एरर मैसेजेस इन अदर फेजेस. सो बेसिकली व्हाट लेक्सिकल एनालाइजर डज, it associates the error messages in other phases. Why it can do that? A lexical analyzer reads the source code character by character. So while reading it, it even remembers the line numbers, right? So if an error is seen by any other phase, then lexical analyzer helps other phases in getting error diagnostics properly. लेक्सिकल एनालाइजर क्योंकि हर लाइन को, हर करेक्टर को वो रीड कर रहा है, तो इसीलिए उसको लाइन नंबर्स याद हैं, उसके पास लाइन नंबर्स की एक पूरी स्टोरेज है. सो दैट इज़ वाई जब भी किसी और फेज में भी कोई एरर होती है और आपके कंपाइलर आपको स्पेसिफिक लाइन नंबर पे एरर को एट द एंड आफ्टर द कंपाइलेशन एट द एंड वो जब आपको बताता है कि इस लाइन पे ये एरर है, इस लाइन पे ये एरर है, तो वो लाइन नंबर कौन याद रखता है? लेक्सिकल एनालाइजर याद रखता है. और हर फेज पे कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए कि स्पेसिफिक किसी भी चीज़ से मुतालिक कि ये वाली आईडी कहाँ पे लिखी हुई थी, ये टोकन कहाँ से आया है, कौन सी लाइन में है, कौन से एट्रीब्यूट में, किस चीज़ में है, तो हमारे पास जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है. सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसकी क्या चीज़ें हैं. ये जो ना आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना. और whatsoever are your queries or your feedback, please give the feedback through comments, and you can ask any questions in the comments, or you can mail me, and you can WhatsApp me whatever your questions are. Thank you so much for watching.